Good morning everyone. In previous class we have discussed trigonometry ratio of complementary angles and we have also solved exercise 8.3. Now we discuss your next topic trigonometry identities. Trigonometry identities. ठीक है, देखो this is a triangle A, B and C, and this one is acute angle. Clear? If we discuss, this is the ABC is an right angle triangle. Clear? By using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, hypotenuse AC square, hypotenuse square, ठीक है, by using Pythagoras theorem, hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. ठीक है, तो अपन इसको ऐसा राइट कर लेते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर equals to AC square. That means hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. Plus perpendicular square. Now we write by dividing AC square in both sides. In both sides. So we write BC upon AC whole square plus AB upon AC whole square equals to AC upon AC whole square. AC upon AC मीनिंग 1 आपके पास में हो गया. ठीक है, हेयर वी डिस्कसिंग अबाउट एक्यूट एंगल ए. क्लियर है? तो यहाँ से आप बाय डिवाइडिंग AC स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. BC upon AC whole square plus AB upon AC whole square equals to AC upon AC. AC upon AC means 1. 1 square is 1. Now you observe that BC upon AC. BC upon AC. AC is the hypotenuse and BC is the perpendicular. Opposite through this is the perpendicular BC. तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो वी नो पीले बेटा पीले हाँ हाँ बेटा, ये पता आपको. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज. Perpendicular upon BC. BC is the perpendicular. BC upon AC. BC upon AC is sin theta whole square. You know trigonometry ratio, sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse. So here is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse we can write sin theta whole square plus AB upon AC. AB is base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse is cos theta whole square and equals to 1. Implies that sin square theta plus cos square theta equals to 1. This is the first identity of trigonometry. This is the first identity of trigonometry.
क्लियर हुआ आपके पास में? फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. Clear? Now we solve next. Next identity. Now we discuss next identity. Dividing equation 1 by AB square. Now dividing equation 1 by AB square. When you divide equation 1 by AB square, BC upon AB whole square. Clear? Plus AB upon AB whole square equals to AC upon AB whole square. Implies that BC upon AC, BC is the base. देखो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं, दिस वन इज द बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. तो BC अपॉन AC, बेस अपॉन BC अपॉन AB. BC इज द बेस, AB इज द परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या हो रही है? बेस अपॉन BC इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर वैल्यू हो रही है आपके पास में कोट थीटा. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या राइट कर लोगे? कोट थीटा होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AB इज 1 इक्वल्स टू AC. AC इज द hypotenuse and AB is the perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular, तो perpendicular upon hypotenuse is sin theta and reciprocal of sin theta is cosec theta. तो you can write cosec theta whole square. तो implies that value is cot square theta plus 1 equals to cosec square theta. This is the identity second of trigonometry. क्लियर हुआ आप सभी के पास में? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1. थीटा का मीन्स हो रहा है आपके पास में ये एंगल आपको थीटा गिवन है. ठीक है, थीटा का मीनिंग आपके पास में इस एंगल के अपन बात कर रहे हैं, एंगल A. This is the second identity of trigonometry. तो first identity of trigonometry is sin square theta plus cos square theta equals to 1. Second identity of trigonometry is cot square theta plus 1 equals to cosec square theta. Cot square theta plus 1 equals to cosec square theta. Now we discuss next identity. Next identity is dividing equation 1 by AC से अपने डिवाइड कर लिया, पहले AB से डिवाइड किया था अभी. तो नाउ वी डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर इन both sides. क्लियर? डिवाइड करो BC से, BC अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन BC होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन BC होल स्क्वायर. implies that BC upon BC 1 square equals to 1 plus AB upon BC. AB is perpendicular upon base. Perpendicular upon base is tan theta. So you can write tan square theta equals to AC upon BC. AC is the hypotenuse and BC is the base. Hypotenuse upon base cos theta and reciprocal of cos theta is sec theta.
तो दिस वन इज द सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इज कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec square theta. These are the trigonometries identities, and some identities we have discussed in previous classes. Sin theta, tan theta equals to sin theta upon cos theta, cot theta equals to cos theta upon sin theta. Clear है? And trigonometry ratios sin theta, cos theta and sec theta are the reciprocals of cot theta, sec theta and cosec theta. Reciprocal of sin theta is reciprocal of sin theta is cosec theta. Reciprocal of cos theta is sec theta, and reciprocal of tan theta is cot theta. Reciprocal means inverse. Clear हो गए trigonometry identities? Okay, now we discuss exercise 8.4. Clear? So therefore first trigonometry identity is cos square theta plus sin square theta equals to 1, जो भी अपन ने प्रूव किया था। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को देखो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जैसे आप tan स्क्वायर थीटा है, व्हेन यू ट्रांसपोर्ट tan स्क्वायर थीटा इन राइट हैंड साइड, तो यू कैन ऑल्सो राइट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। इसका मीनिंग ये भी होता है sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी आपके पास में इसका पॉसिबल है। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। 1 को आप ट्रांसपोज कर सकते हो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसी को ऐसे भी राइट कर सकते हो। व्हेन यू ट्रांसपोज 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो। तो ओनली आपको सिंपल ये वाला आपको लर्न करना है, ये पता होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप इसको ट्रांसपोज करके ऐसे भी राइट कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। यू कैन ऑल्सो राइट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट व्हेन यू ट्रांसपोज कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। व्हेन यू ट्रांसपोज कोट स्क्वायर थीटा इन राइट हैंड साइड, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप ऐसा राइट नहीं कर सकते कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 नहीं, फिर वो क्या होगा माइनस 1। क्लियर? ऐसे फोर्थ आइडेंटिटी जो अपन ने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस की थी, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिफ्थ आइडेंटिटी इज कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाली आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा,
एंड थर्ड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है सबके? ओके, नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज express the trigonometry ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। तो first we convert sin A in terms of cot A। तो how we solve sin A in terms of cot A? क्लियर है? तो आपको देखो पता है, वी नो दैट साइन ए इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ कोट ए आपको फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड करोगे? आपको पता है सिंस कोट ए इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, कोट ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए। कोट ए इक्वल्स टू आपके पास में क्या होता है, साइन कोस ए अपॉन साइन ए। तो देयरफॉर वी कैन राइट साइन ए इक्वल्स टू कोस ए अपॉन कोट ए। ऐसा राइट कर सकते हैं अपन, साइन ए इक्वल्स टू कोस ए अपॉन कोट ए। अब आपको इन टर्म्स ऑफ कोट ए वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, किस टर्म में आपको वैल्यू फाइंड करनी है? इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो आपके पास में आपको रिलेशन पता है, साइन ए को आपको कोट ए में कन्वर्ट करना है। गिवन क्या है, कोट ए इक्वल्स टू कोस ए अपॉन साइन ए। साइन ए इक्वल्स टू हो गया आपके पास में कोस ए अपॉन कोट ए। ओके, इम्प्लाइज दैट साइन ए आपको इस वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आपके पास में देखो वैल्यू क्या हो गई, कोस ए, ये तो आपको एज इट इज़ गिवन है। कोट को आपको साइन की फॉर्म में आप कन्वर्ट करना है, तो आप किस टाइप से राइट कर सकते हो? देखो आपको पता है, सिंस यू नो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। व्हेन यू फाइंड कोसेक ए इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कोसेक ए को आप क्या राइट कर सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है? ओके, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? देखो इस वाले क्वेश्चन में अपन साइन ए को आपको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यहाँ से देखो अपन आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साइन ए को आपको चेंज करना है, तो आप राइट करो बाय यूजिंग आइडेंटिटी वी नो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस जो भी अपने आइडेंटिटी डिस्कस की थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह एंगल आपको ये गिवन है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए।
क्लियर है आपके पास में? ठीक है, इस वाली वैल्यू को अपन क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ से देखो, ठीक है, साइन में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप कैसे राइट कर सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसको आप क्या राइट कर सकते हो, 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। क्लियर है? आपको पता है साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए एंड 1 अपॉन कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। नाउ वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए, आप इस साइड में राइट कर सकते हो वैसे, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, implies that sin A equals to, when you remove this square then here we write square root 1 upon 1 plus cot square A, implies that sin A equals to square root of 1 is 1 and square root of this value is 1 plus cot square A। यह आपके पास में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, वी राइट 1 अपॉन साइन ए, आप यहाँ पे ब्रैकेट में राइट कर लेना, सिंस साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, साइन ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए, तो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो गया, साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए। आप इस टाइप से करोगे, ये साइन ए आ गया आपके पास में इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इसी में फिर नेक्स्ट आपके पास में दी गिवन है सेक ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ sec a in terms of cot a। ठीक है, तो उसको भी अपन बाय यूजिंग आइडेंटिटी sec a in terms of cot a सोल्व कर सकते हैं। देखो किस टाइप से, आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है सेक स्क्वायर ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो आप इसको किस टाइप से राइट कर सकते हो, इम्प्लाइज दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए वी कैन राइट 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, इम्प्लाइज दैट sec square a equals to LCM is cot square a, तो here we write cot square a plus 1, implies that sec a equals to square root of cot square a प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, implies that sec a equals to square root of cot square a plus 1 upon cot a. This is the sec a in terms of cot a, sec a in terms of cot a, and last is tan a in terms of cot a, tan a and tan a in terms of cot a, तो we know tan a equals to 1 upon cot a। ये तो पता आपको, tan a is the reciprocal of
कोट ए, तो देयरफॉर tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट ए। तो ये हो गया आपके पास में बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए कैसे आया, tan A इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट ए, तो 1 अपॉन tan आपने राइट किया, यहाँ से इसको अपन ने सोल्व कर लिया। क्लियर है? ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकेंड इज write all the other trigonometry ratios of angle A in terms of sec A। तो आप किस टाइप से ये सोल्व करोगे इसको, बाय यूजिंग आइडेंटिटी cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। आपको ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट अपन साइन को कन्वर्ट करेंगे। किस टाइप से राइट करोगे, देखो आप ऐसे राइट कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर? इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस, वी कैन कन्वर्ट कोस इन सेक 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्लियर हुआ? क्लियर है? सेक कैसे है आपको पता है, सिंस कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था अपन ने। सेक कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, कोस ए सेक ए। क्लियर है? सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। यहाँ से क्लियर हो गया। इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, नाउ वी टेक एलसीएम, सेक स्क्वायर ए, सेक व्हेन यू सोल्व सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इम्प्लाइज दैट व्हेन वी राइट साइन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 upon sec square a, implies that sin A equals to square root of sec square A minus 1 upon sec A। ये हो गया आपके पास में sin A in terms of sec A। क्लियर हुआ? sin A in terms of सेक है एंड कोस ए को कन्वर्ट करना है, और क्या हो जाएगा, कोस ए तो डायरेक्टली पता है आपको, कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। ये भी आपके पास में कन्वर्ट हो गया, कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। क्लियर हुआ? बाय यूजिंग आइडेंटिटी कोस स्क्वायर ए, साइन को आपने सेक की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए हो गया, और कोस ए आपको डायरेक्टली रिलेशन पता है, कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। नेक्स्ट आपको पता है, आपको यहाँ से अपन राइट कर सकते हैं, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे आप एंगल ए राइट कर रहे हैं ना अपन, तो आप ए ही राइट करो, ए implies that tan square A equals to sec square A minus 1 implies that tan A equals to square root of sec square A minus 1। यह आपके पास में हो गया ट्रिग्नोमेट्री tan A in terms of sec A, tan A in terms of sec A, tan A इक्वल्स टू हो गया आपके पास में sec स्क्वायर A माइनस 1, tan A in terms of cot A, sec A in terms of cot A। क्लियर हो गया आपके पास में। यहाँ से अपन cot A भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से देखो अपन कोट ए फाइंड कर सकते हैं। किस टाइप से फाइंड करोगे आप? यहाँ तक क्लियर है सबके?
ये रिलेशन हो गया साइन ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए एंड टेन ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अपन कोट का भी फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट tan A we know that cot A equals to 1 upon tan A equals to 1 upon tan A equals to आपको गिवन है रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके पास में हो गया tan A वाला कोट ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कोट ए इक्वल्स टू हो गया आपके पास में 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर हो गया आपके पास में? डाउट है इसमें किसी को? वी नो दैट कोट ए इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन टेन ए, और 1 अपॉन टेन ए का मीन्स टेन ए वैल्यू आपके पास में ये आ गई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो वैल्यू हो गई आपके पास में 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब अपन बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अब आपको अभी आपके पास में ये तो आ गया, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन हो गया और कोट हो गया। अब अपन को पास में सेक तो आपको ऑलरेडी गिवन है, सेक इन टर्म्स ऑफ सेक क्या होगा, सेक ही होगा। अब आपको और क्या फाइंड करना है, कोसेक फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ सेक के। क्या फाइंड करना है आपको, कोसेक इन टर्म्स ऑफ सेक के। तो यहाँ से आपके पास में देखो किस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। सिंस यहाँ से देखो 1 अपॉन टेन ए, यहाँ से अपन राइट कर सकते हैं सिंस 1 अपॉन टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 अपॉन टेन ए, 1 अपॉन टेन को अपन क्या राइट कर सकते हैं, कोट, और इसका मीनिंग अपन ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं। यह आपके पास में क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपको पता है 1 अपॉन साइन ए का मीनिंग क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए का मीनिंग होता है आपके पास में कोसेक ए, ठीक है, एंड 1 अपॉन कोस का मीनिंग होता है आपके पास में सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इम्प्लाइज दैट कोसेक ए इक्वल्स टू सेक, यहाँ आ जाएगा आपके पास में सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया आपके पास में कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्लियर हुआ? यहाँ से देखो आपको थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो 1 अपॉन टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो भी अपन ने सोल्व किया है। टेन ए को क्या राइट, 1 अपॉन टेन ए का मीन्स क्या होता है, कोट ए, कोट मीन्स क्या होगा, कोस ए अपॉन साइन ए, ये राइट कर लिया अपन ने। 1 अपॉन साइन ए का मीनिंग क्या होगा, कोसेक ए, इस कोस को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में राइट करता हूँ तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए का मीनिंग सेक ए, तो सेक कोसेक ए इक्वल्स टू हो गया आपके पास में सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2? ठीक है, वी हैव सॉल्व ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप देखो किस टाइप से अपन सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, आपको ये गिवन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री 63 डिग्री, तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर
90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री implies that sin square 90 minus theta is cos theta. Cos square 27 degree plus sin square 27 degree upon cos 90 minus theta sin theta. Sin square 27 degree 73 degree प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये देखो आपके पास में बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो थीटा का मीनिंग है यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए आपके पास में। क्लियर? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास में 1/1 एंड आंसर इज 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एंगल सेम होना चाहिए, 73 डिग्री 73 डिग्री है। यह एंगल सेम नहीं था, अपन ने एंगल सेम बनाया बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। आप किस टाइप से सोल्व करोगे इसको? आप ऐसे राइट कर सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 90 माइनस 65 इज 25 एंड वैल्यू इज कोस 65 डिग्री। प्लस आप इसको कैसे राइट कर सकते हो? ये वाली जो वैल्यू है उसको आप राइट कर सकते हो कोस 90 माइनस 65 डिग्री एंड दिस वन इज साइन 65 डिग्री। तो वैल्यू आपकी इम्प्लाइज है साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, कोस 65 डिग्री कोस 65 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। इम्प्लाइज दैट कोस 65 इज कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा 1। वही बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा सेम होना चाहिए आपके पास में यहाँ पे, चाहे थीटा 23 डिग्री हो, थीटा हाफ डिग्री हो, तो भी आपके पास में ऑलवेज आंसर क्या होगा उसका 1 होगा बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। क्लियर है आपके पास में? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट इज 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो आपके पास में देखो आप किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप ऐसे राइट कर सकते हो इक्वल्स टू 9, वी टेक कॉमन 9 एंड वैल्यू इज सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल्स टू 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। वी नो द आइडेंटिटी सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। वैल्यू क्या रिटर्न है आपके पास में? ये ट्रांसपोज हो रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। Therefore you can write sec square a minus tan square a equals to 1. Therefore sec square a minus tan square a replaced by 1 equals to 1. तो यह आपके पास में इसका आंसर हो गया 9. That means option B is the correct answer. Option B. ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है ये आपके पास में क्या गिवन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 9। यहाँ से आइडेंटिटी क्लियर हो रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। आपने ट्रांसपोज किया tan स्क्वायर ए इन राइट हैंड साइड, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए रिप्लेस बाई 1, 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 9।
ठीक है, फिर अपन इसी का फोर्थ पार्ट सोल्व कर लेते हैं। पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। पता आपको ये आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर, नहीं अपन ने गलत राइट कर दिया, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, ये भी अपन ने यहाँ से राइट किया था, अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, राइट कर सकते हैं अपन ऐसा। ठीक है, आपको ये किस टर्म्स में आंसर फाइंड करना है, आपको टेन कोट की फॉर्म में या सेक की फॉर्म में आंसर फाइंड करना है, तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए को यहाँ राइट कर लेते हैं अपन, sec is the reciprocal of cos and cosec is the reciprocal of sin, तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, sin स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a, sin स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a किस टाइप से, देखो 1 अपॉन कोसेक वी राइट sin, एंड इसको ही आप यहाँ से राइट करोगे तो वी राइट 1 अपॉन कोस, तो इसका मीनिंग ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, टेन स्क्वायर ए, एंड टेन स्क्वायर ए इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ आपके पास में, ये क्लियर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है। यहाँ से जब आपने सोल्व किया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए स्क्वायर हो रहा है, तो वी राइट टेन स्क्वायर ए। क्लियर है सबके, ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन गिवन हो तो फर्स्ट वी कन्वर्ट टेन थीटा एंड सेक थीटा इन फॉर्म ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा, तो वी राइट 1 प्लस टेन थीटा, वी राइट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos theta। clear, 1 plus cot theta is cos theta upon sin theta minus cosec theta is 1 upon cos theta, 1 upon sin theta, sorry। clear, okay, now we take LCM। LCM is cos theta, cos theta, LCM is cos theta plus sin theta plus 1, again LCM is sin theta, तो here is sin theta प्लस कोस थीटा माइनस 1, तो वैल्यू आपके पास में किस टाइप से रिटर्न है, यहाँ से आप देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये सेम आ रही है वैल्यू, देखो यहाँ से कोस थीटा प्लस 1 और ये वैल्यू आपके पास में सेम है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, तो इसका मीनिंग ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की फॉर्म में वैल्यू आपके पास में रिटर्न है, तो आप इसको किस टाइप से राइट कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, हाउ वी राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप कैसे राइट कर लोगे इसको, कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन कोस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू को ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी,
एंड माइनस 1 एज इट इज आपको गिवन है, एंड वैल्यू इज कोस थीटा एंड साइन थीटा। क्लियर? ओके, कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। सॉरी, -1 नहीं, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, रीजन यहाँ से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सोल्व करोगे तो पॉजिटिव साइन गिवन है तो पॉजिटिव आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। यहाँ से आप देख रहे हो -1 एंड ये +1 एंड -1 कट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, यहाँ राइट कर लेते हैं अपन। वैल्यू इज 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कट हो गया और ये 2 आपके पास में आंसर हो गया। दैट्स मीन्स 2 आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ आप सबके? क्लियर है? कश्यप के अपन ने किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व किया है? तो आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन है, जब भी आपको साइन थीटा सेक थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन और आपको पता नहीं चल रहा हो कि अपन को कैसे सोल्व करना है, तो आप सिंपल उनको साइन थीटा कोस सेक थीटा को साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट किस टाइप से करोगे वो अपन ने देखा, और इसको सोल्व करके अपन आंसर फाइंड कर लेंगे। एंड आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज 2। नाउ वी सोल्व लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। Okay, now convert sec A is 1 upon cos A plus tan A is sin A upon cos A, 1 minus sin A equals to LCM is cos A 1 plus sin A, and here is 1 minus sin A equals to 1 plus sin A and 1 minus sin A plus B and A minus B, A square minus B square upon cos A equals to 1 square is 1, sin is sin square A upon cos A equals to 1 minus sin square A is cos square A upon cos A। रीजन क्या होगा आपके पास में, सिंस cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, therefore cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर A। क्लियर हुआ? यहाँ से आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यू कैन रिप्लेस बाय कोस स्क्वायर ए। ये कोस स्क्वायर ए से ये 1 कट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, कोस ए इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स मीन्स कोस ए इज़ द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में देखो आपको ऑप्शन टाइप का गिवन है, पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए, प्रूव दैट इक्वल्स टू कोसेक ए होता है। तो आपको इसी टाइप से सोल्व करके कोसे आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक आपके पास में क्वेश्चन सोल्व किए हैं अपन ने। ठीक है, क्वेश्चन 5 जो है वो आपके पास में प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, जो अपन आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके अब तक के जो भी क्वेश्चंस हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व करना, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करना, और आप इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करना है। ओके, थैंक यू।